Okay, once again, good morning to all. So today we are going to start with the next part that yesterday we understood what is a material, what is the material master, then we understand what is the raw material, then what are the types of material, what are the types of industry, then their implication, then what is the different way to create a material, what is the configuration of OMS2, then we understand what are the numbering systems and what is the external number, internal number, then we understand material group and so on. So today we are going to start with the unit of measure. Okay. So what is the unit of measure? Let us understand that in SI system only. So we have created material MM03. Material is refrigerator B14. Okay. This is our material. In this material, there is basic data. In the basic data, we are having base unit of measure, that is each. Okay. What we are saying, one piece is equal to one refrigerator. Okay. Yes. Now try to Yes. assume if this product is not a refrigerator, and instead of this, we are manufacturing, suppose Parle-G biscuits. Okay. Parle-G biscuits. So what will be the scenario? It will be a packet, one packet, right? Because we are not manufacturing single biscuit. We are manufacturing Parle-G biscuit. Okay. Then Yes. quantity will be different. Okay. Yes. Now Yes. just assume we are manufacturing a Parle-G biscuit. Let me have one Excel open for all. Okay. Suppose now we are manufacturing biscuits. Parle-G. Okay, this is your product. Okay. Now, are you aware what are the different types of packaging available for these biscuits? If I'm not wrong, the lowest pack, okay, I will say small pack, which is having a quantity of 5. Okay. Yes. Okay, 5 units are there. Then there is little bigger, we can say medium size, Medium size. medium packing, which is having quantity almost 10. Okay. And above that, there is a large packet, which is having quantity of maybe 100 or 50. I don't, okay, 50, 100, 50, I guess. Okay. And there is a large, extra large, we can say, okay. Extra large packing, where we can see 100. Okay. So this is something packaging available. Now, just try to understand the way this is packing is, this is for individual customer, okay, for end user. But when the order is given to the Parle-G and Parle-G distribute the material to their supplier or sorry, the distributors, okay, at that time, this quantity is going to be different, okay. Now let us understand what is the different size, okay. So suppose this is one box, okay. In one box, can you see this small box? There are 4 boxes inside this carton. Inside that carton, there is a box. So assume one box, okay, one small box is having this extra large packet 10 quantity. Okay, 10 extra large. Okay, is equal to how many biscuits? 1000. 1000 biscuits, right? Clear? Yes. Okay. I say unit of UM is equal to unit of measure. Okay. Yes. Now assume one crate is now having 1, 2, 3. Here 4 are there. Here pieces are 16 boxes are there. 16 boxes. One crate is equal to, okay, 16 boxes. So 16 multiplied by 100. Okay, so 1000
1600 quantity. I think I ordered some mistake, I guess. It was 16,000, right? Yes. Okay. And next option is pallet. Okay. One pallet is having how many? 72 pieces. 72. Okay. So it will be 7,200 biscuits. Okay. No. 20,000 biscuits. Okay. Clear? So this is unit of measure. So one box is having. So let's assume. Let's just delete this for a minute. Just assume our Parle-G biscuits base of unit of measure is one pack, one small pack. Okay, is equal to each is equal to 5 biscuits. Okay. Assume like this now for 2 minutes. Okay. छोटा एक बिस्किट का बूढ़ा है जिसके अंदर एक पैकेट इज इक्वल टू 1 ईच हम बोल रहे हैं. नाउ एक बॉक्स के अंदर ऐसे 10 पीस आ जाते हैं. ठीक है. 10 छोटे पैक आएंगे एक बॉक्स के अंदर. मतलब कितना आएगा उसके अंदर? 100 क्वांटिटी आएगा. ओके. एक क्रेट के अंदर 16 छोटे बॉक्स आएंगे. मतलब वहां पे कितना क्वांटिटी चला जाएगा? 160. ओके. एंड एक पैलेट है उसमें 72 पैकेट जाएंगे. ठीक है. अभी बहुत कम क्वांटिटी दिख रहा है यहाँ पैलेट के हिसाब से. तो एज्यूम करते हैं यहाँ पे 72, यहाँ पे 100 क्वांटिटी जाएगा. सपोज 1000 क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं 500. ठीक है. 1 क्रेट के अंदर. ठीक है. तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 2500. ठीक है. और ये क्वांटिटी हो जाएगा 10,000. ठीक है. नाउ गेटिंग माय पॉइंट. तो अभी देखो आपका अगर डीलर को, अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई एम डूइंग. सपोज एज्यूम करो आप, your manufacturing is happen in Mumbai and from Mumbai they are distributing the material all over the India. Now पुणे में एक बंदा है, ही जो पार्ले का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या बोलेगा, मुझे 20 पैलेट माल चाहिए. Are you getting my point? 20 पैलेट, 20 पैलेट is equal to how much quantity? 2 lakhs biscuits almost. Yes. Right. Yes. If he give the order and he say okay, उसने इनवॉइस क्रिएट किया, सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, उसको बोला कि यार कितना नंबर, उसको हमने बोला नहीं बस वी हैव ओनली यूनिट ऑफ मेजर इज इक्वल टू ईच. ओके. ईच का ही हमारे पास यूनिट है. तो उसको बोलेंगे कि भैया आपको एक पैकेट है, स्मॉल पैक एक लेना है और आपको टोटल 20 लाख क्वांटिटी चाहिए. तो 20 लाख क्वांटिटी लाने के लिए उसको कितना ये करना पड़ेगा? लगभग 40,000 उसको क्वांटिटी का यूनिट देना पड़ेगा. 40,000 स्मॉल पैक लिखना पड़ेगा उसको, तब जाके वो 20 लाख हो जाएगा. बराबर है. तो ऑर्डर लिखने में उसको दिक्कत आ रही है. आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसको यूनिट ऑफ मेजर हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से दे रहे हैं. वो क्या बोल देगा, भैया 20 पैलेट भेज दो. 20 पैलेट भेज दो. इतना आसान हो गया कि समझ में आ गया सबको. 20 पैलेट इज इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी? 2 लाख. 2 लाख क्वांटिटी. राइट. तो वो कहाँ से पता चल रहा है उसको? इसके बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, द ऑर्डर गिविंग इज बिकम इजी. ठीक है. अभी इसने 20 पैलेट ले लिया. 20 पैलेट में से उसके अंडर जो एक छोटा रीजन है, ठीक है, उस रीजन का बंदा है, वो एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है. उसने क्या बोला, मुझे आप 10 क्रेट दे दो. ठीक है. 10 क्रेट यानी 5,000 बिस्कुट उसको चाहिए. समझ में आ रहा है. और नीचे जो एक शॉपकीपर है वो बोला मुझे 10 बॉक्स दे दो. तो उसने कितना? 1000 क्वांटिटी ले लिया. ओके. तो समझ में आ रहा है. हर एक बंदा, मतलब हर एक एंड लेवल का बंदा धीरे धीरे क्वांटिटी कम करते जा रहा है और उसका यूनिट ऑफ मेजर भी छोटा हो रहा है. और ये बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग दिस अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर, वी हैव अ गुड बिजनेस प्रोसेस, और वी कैन से वी कैन डील विद द पीपल विद देयर वेरी फेयर काइंड ऑफ यूनिट ऑफ मेजर. समझ में आ रहा है आपको? ओके. राजेंद्र, हु इज दिस Redmi Note 7 Pro? Rishi, are you clear? Yes, sir. Yeah, May I know who is this Redmi 7 Pro? Your name? it's me, Swapnil. Swapnil. Okay. Hello. Yes. Why you are joining? Okay, Swapnil. No, actually, since yesterday evening 7:30, there is power cut at my area. No, no worries, no worries. I got it. Okay. Yeah, Chalo. that's why Okay. I come back. No issue, Swapnil. Thank you. So, team, try to understand. This is your unit of measure in which we are having different combination. Now,
why this alternate unit of measure is used? Because it will help business people to use it in a particular way, or there will be comfort. Now just try to understand. If I say one more unit, one truck, if my unit of measure is one truck load, okay, and is equal to 100 pallet. Okay, do you understand now? So this is the way business can be used different unit of measure, and ये alternate unit of measure की वजह से क्या हो सकता है? You are able to do very better with your product. ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, yes. और एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ मैं आपको. चलो, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ पाइप. ठीक है, यू आर इन अ इंडस्ट्री वेयर यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ पाइप. ओके, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे भी हमारा यूनिट ऑफ मेजर ईच है. सपोज बेस यूनिट ऑफ मेजर ईच है. ईच इज इक्वल टू वन पाइप. ओके, एंड वन पाइप इज इक्वल टू 6 मीटर. ठीक है, आपको मालूम है आपका स्टैंडर्ड पीस एक पाइप है जो 6 मीटर का रहता है. ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड लेंथ है. अगर किसी कस्टमर का ऑर्डर आ गया, ठीक है, आपको, और उसको चाहिए, ओके, अभी एक कस्टमर है, उसको ऑर्डर चाहिए, उसको अगर यहाँ पे आपने ये कन्वर्जन नहीं रखा, सपोज 6 मीटर, और आपने रखा वन पाइप इज इक्वल टू 1 kg, ये आपका दूसरा यूनिट ऑफ मेजर है. ठीक है, ईच. ओके, ये अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर है आपके पास. दो अल्टरनेट, एक तो आपका एक वन पाइप इज इक्वल टू 6 मीटर है, वन पाइप इज इक्वल टू 1 kg है. अभी क्या होगा? आइदर आपका कस्टमर आपको ऑर्डर देगा कि मुझे 10 टन पाइप चाहिए. ठीक है, तो उसको इजीली कितना देना पड़ेगा, कितना पीसेस देना पड़ेगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, राइट? टीम गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. ओके, बिकॉज आपको मालूम है एक पाइप का वजन है 1 किलोग्राम. अगर उसको 10 टन देना है, मतलब 10,000 पाइप देने पड़ेंगे, देना पड़ेंगे. राइट? 10,000 पीसेस, वेरी इजी. ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज दैट, अभी देखो पाइप जो होता है, मान लो कि आपका एग्रीकल्चर पाइप है. ठीक है, एग्रीकल्चर पाइप में क्या होता है? द पर्सन हु इज बाइंग, जो फार्मर होता है, वो क्या बोलता है? उसको पाइप चाहिए, तो उसको पूछते भाई कितना पाइप चाहिए, तो वो क्या बंदा बोलता है, यार देखो मेरा खेत है, और जो पानी का सोर्स है, जब मान लो नदी है, रिवर है, जो भी है, वहां से मेरा खेत 2 किलोमीटर दूर है, तो मुझे 2 किलोमीटर का पाइपिंग करना है, 2 किलोमीटर. ठीक है, तो आसान हो गया उसको. अगर ये 6 मीटर का पाइप है एक टुकड़ा, तो 2 किलोमीटर के लिए कितने पाइप लगेंगे? दैट कैलकुलेशन कैन बी हैपन, राइट? बस 20 kg. 2000 डिवाइडेड बाई 6, तो लगभग उसको 335 पाइप्स देने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, yes. दिस इज द यूज ऑफ हैविंग अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर. क्लियर? यस और नो? Yes. Yes. राजेंद्र, आर यू क्लियर? वैजू, आर यू क्लियर? ऋषि, स्वप्निल, Yes, yes. एवरीबडी इज क्लियर? Yes, yes. तो लेट अस गो टू सिस्टम. यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस स्लाइड के ऊपर. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि देखो एक कोई तो प्रोडक्ट है, सपोज दिस इज वन प्रोडक्ट, ये बेस यूनिट ऑफ मेजर इज 1 इज इक्वल टू ईच, और पीसेस है, एक पीस है. ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1 कार्टन. अगर आपने कार्टन में ऑर्डर दिया तो आपको 4 पीस मिलेंगे. ठीक है, अगर आपने क्रेट में ऑर्डर दिया तो आपको 16 पीसेस मिलेंगे. और आप ये मान लो कि आपका एक एप्पल का वॉच का बॉक्स है. ठीक है, ठीक है, दिस इज इनसाइड दिस बॉक्स देयर इज एप्पल वॉच. ओके, आगे अगर आपने और डीलर ने ऑर्डर दिया, एक कार्टन बोला, एक कार्टन भेज दो, तो 4 पीसेस जाएंगे उस दुकान को. आईफोन जो सेल कर रहा है उसको एक कार्टन ऑर्डर दे दिया तो 4 पीसेस आ जाएंगे. उसने बोला मुझे एक क्रेट चाहिए, मतलब 16 पीसेस उसको भेजना है. और एक पैलेट बोला तो उसको 72 पीसेस भेजने हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द वे अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर इज अवेलेबल. एंड अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर इज यूज बाय डिफरेंट मॉडल. जैसे पीबी मॉडल है, वो यूज करेगा. ठीक है, और आपका अगर सेल्स वाला है, तो सेल्स वाला क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगा आपका पीसेस में. ओके, आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको एप्पल वॉच की ऑर्डर आ जाती है, तो आप क्या करोगे? आज हमें 10,000 एप्पल वॉच बनाने हैं. आप 10,000 एप्पल वॉच बनाओगे, उसको पैक करके रखोगे भी, लेकिन जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा, कस्टमर बोलेगा, सपोज कस्टमर का ऑर्डर आया कि उसको 10,000 एप्पल वॉच का आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, और उसको आया, उसको बनाना है, उसको चाहिए सपोज 500 पीस चाहिए. ठीक है, या 500 या 1000 पीस चाहिए.
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वे। तो आप क्या करोगे, उतने सारे पैलेट बनाओगे 1000 डिवाइडेड बाई 72, और जितना पैलेट बनता है उतना पैलेट, और उसके ऊपर एक दो एक्स्ट्रा क्रेट, ऐसा करके पैकिंग करके ऑर्डर भेजोगे। आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes. ठीक है। या फिर यूजर क्या बोलेगा, मुझे 10 पैलेट का ऑर्डर देना है, ठीक है। तो दिस इज द वे यूजर विल यूज द बेस यूनिट ऑफ मेजर। क्लियर है सबको? नाउ लेट अस गो टू हर सिस्टम। प्रोडक्ट के लिए हाँ, क्या गो हर अहेड। प्रोडक्ट के लिए ये बेस यूनिट डिफाइंड है क्या, प्री डिफाइंड? देखो, अभी हर प्रोडक्ट के लिए बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या रखना है, दैट इज कॉल ऑफ बिजनेस। आप जिस कस्टमर के साथ काम कर रहे हो उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है वो उसको मालूम है। अभी देखो, यहाँ पे हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर तो एक सिंगल पीस है, राइट? तो उसको हमेशा ईच में बनाओगे। अभी हम यहाँ पे ईच जो रख रहे हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम एक प्रोडक्ट को एक ईच करके बोला जाता है। अगर एक कार है तो एक ही रहेगा, ठीक है। अगर ये आपका पेप्सी का बॉटल है तो बॉटल भी ईच हो सकता है, उसके ऊपर लिखोगे पेप्सी 1 लीटर बॉटल, पेप्सी 1.5 लीटर बॉटल के लिए अलग मेटल नंबर रहेगा, तो उसका यूनिट ऑफ मेजर भी ईच होगा, ठीक है। अभी पेप्सी का बॉटल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ईच इज इक्वल टू 1 लीटर पेप्सी, ओके, ठीक है। अभी मान लो उसके बाद आपने देखा है कि पेप्सी का बॉटल है, उसका एक एक पैकेट आता है, उस पैकेट में क्या करते हो, 12 पेप्सी के बॉटल रखते हैं, राइट? ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे 1 ईच इज इक्वल टू 1 लीटर, वो भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये पेप्सी और क्रेट पे डाल दिया, ओके, ईच इज इक्वल टू, अगर क्रेट पे है 1 इज इक्वल टू 1 लीटर, ये हो गया 1 लीटर के हिसाब से, और एक क्रेट हो गया, एक क्रेट के ऊपर मान लो कि ऐसे आपके 10 ये 40 ये बैठ रहे हैं, तो ये 480 लीटर का आपका एक क्रेट हो गया, या फिर पैलेट हो गया, क्रेट हो गया। और एक क्रेट और 1 पैलेट इज इक्वल टू, अगर 1 पैलेट है तो पैलेट के हिसाब से ये जाएगा, एक पैलेट में अगर मान लो कि 1000 लीटर जाता है तो 1000 लीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 पैलेट, ओके। समझ में आ रहा है आपको? तो हर एक बोतल को बेस यूनिट ऑफ मेजर देना ही देना है आपको। वो क्या देना है, दैट इज अ कॉल ऑफ योर बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। ओके। चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस स्लैश एन mm02। अभी अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर कैसे यूज करते हो देख लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू गो टू mm02, दैट इज एडिट मेटल मास्टर, देन वी हैव टू गो टू बेसिक डेटा 1, एंड हियर देयर इज ऑप्शन एडिशनल डेटा, ओके। जस्ट क्लिक ऑन एडिशनल डेटा एंड यूनिट ऑफ मेजर यू हैव टू गो। एंड अभी हमने जो बिस्किट का एग्जांपल लिया था वैसा हम एग्जांपल वो कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। सो 1 बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर हमारे कितने भी बिस्किट के ये जा रहे हैं, मान लो 10 जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10। 1 क्रेट, अगर मैं 1 क्रेट का ऑर्डर देता हूँ, CR, लेट मी चेक क्रेट का स्पेलिंग क्या है। Clarity. CRAT. ओके, 1 क्रेट इज इक्वल टू 100 ईच। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ईच, एक क्रेट के अंदर कितना पीसेस बैठेगा, 100 पीसेस बैठेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिंकेज डाल रहा हूँ, 1 पैलेट इज इक्वल टू 1000 पीसेस सपोज। समझ में आ गया आपको? Yes. अगर हमारा दूसरा एग्जांपल देखना था, अगर ये यहाँ पे आपको ये एग्जांपल देखना है, केजी वाला पाइप का एग्जांपल देखते हैं, तो हम लिख रहे हैं 1 ईच इज इक्वल टू, सॉरी, 1 kg इज इक्वल टू 1 ईच। ये पाइप का एग्जांपल हो गया, ठीक है। 1 मीटर, सॉरी, E. 1 मिनट, 1 मीटर, 1 ईच, 6 मीटर इज इक्वल टू 1 ईच। समझ में आ रहा है आपको? एक पाइप का टुकड़ा इज इक्वल टू 6 मीटर, ओके।
आर गेटिंग माय पॉइंट टीम? कैसे करना है? इफ Yes. नॉट क्लियर प्लीज लेट मी नो। राजेंद्र, Pipe के ना, केस में 1 inch Yes. is equal to 1 kGa and 1 inch is equal to 1 meter. दोनों भी सेम होंगे क्या? नहीं मैं समझा नहीं, थोड़ा लिटिल लाउड स्वप्निल, रिपीट योर क्वेश्चन। पाइप के केस में या हाँ, पाइप के केस में 1 each is equal to 1 kg 1 each is equal and to 1 again kg। again 1 inch is equal to 1 meter. नहीं 6 मीटर है ना हमारा एक पाइप। देखो हमने मतलब 6 मीटर। यहाँ पे क्या लिखा हमने, 1 पाइप इज इक्वल टू 6 मीटर। मेरा एक पाइप का जो पीस है उसका लेंथ 6 मीटर रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 6 मीटर इज इक्वल टू 1 ईच। बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या है आपका? ईच है, बराबर है। एक पीस Right. एक, उसके साथ अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर क्या है मेरा? ये मीटर है और उसका क्वांटिटी 6। ठीक है, 6 मीटर इज इक्वल टू 1 ईच, ऐसा है। Right. Okay. Clear. क्लियर ना? ओके, चलो। Yeah. सो दिस इज द वे वी कैन क्रिएट द अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर। ओके, और इसको सेव करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बॉक्स इसके लिए, मतलब हमारे रेफ्रिजरेटर के लिए ये सुटेबल नहीं है एग्जांपल, उसमें अल्टरनेट यूनिट मेजर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट, so this is the way we can create alternate unit of measure. Okay, now let us understand default values for material. Default values of material mean what? In industry sector can be made default material type in MM01 using default button. अभी देखो MM01 जो हमारा ट्रांजैक्शन कोड है, यहाँ पे जब हम जाते हैं, then we are going to select something here like mechanical industry. Okay, ओके, देन वी सिलेक्ट यहाँ पर फिनिश मटेरियल। सपोज अभी एक हम क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल ले लेते हैं। ओके, ROH रॉ मटेरियल। ये सिलेक्ट करने के बाद एवरी टाइम यू हैव टू गो एंड वी हैव टू सिलेक्ट कि भैया मुझे बेसिक डेटा 1 चाहिए, बेसिक डेटा 2 चाहिए। ओके, अभी रॉ मटेरियल तो परचेसिंग आएगा, फिर वहाँ पे MRP 1 2 3 4 भी आएगा, उसको फोरकास्टिंग नहीं लगेगा। हाँ, ये व्यूज लग सकते हैं लेकिन नहीं, क्वालिटी ओके, अकाउंटिंग 1 कॉस्टिंग 1 कॉस्टिंग 2, ठीक है, ये सब लगेगा। अभी ये बार बार सिलेक्ट करना है आपको, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई टू सिलेक्ट अगेन एंड अगेन? सो व्हाट वी विल डू, वी कैन क्लिक दिस ऑन अ डिफॉल्ट सेटिंग बटन। अभी मुझे मालूम है एज ए एंड यूजर, एज ए सुपर यूजर, आपका जो बंदा है जो भी क्रिएट करने वाला है मटेरियल मास्टर, he or she will aware that they have to use this again and again, so they will simply click on default setting. Okay, default setting को बटन को क्लिक करेंगे एंड उसने अभी डिफॉल्ट सेटिंग को क्लिक कर दिया तो ये सेव हो जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे जाके ऑर्गेनाइजेशन लेवल, उनको मालूम है कि दे आर क्रिएटिंग मटेरियल अगेन एंड अगेन फॉर प्लांट 1000। ठीक है, अगर वो बार बार वही प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं और स्टोरेज लोकेशन भी उनका डिफाइन है, अगर डिफाइन नहीं हो तो भी इतना तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग सेव कर सकते हैं। अभी देखो ये सेव करने के बाद अभी मैं आपको दूसरा मटेरियल क्रिएट करके दिखाता हूँ। वापस ये स्क्रीन छोड़ देते हैं यहाँ पे। वापस में अगर नेक्स्ट टाइम वो जब स्क्रीन ओपन करेंगे MM01 रॉ मटेरियल वगैरह ये कॉम्बिनेशन एंटर करेंगे तो कैन यू सी दैट दे डोंट हैव टू सिलेक्ट, इट इज गॉट सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल। Yes, yes. हाँ, तो इसको Yes. बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। ओके, सो MM0 कैन बी मेक अ लिस्ट ऑफ यूज एंड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू प्लांट डिफॉल्ट वैल्यूज ओनली, तो उनको एक बार डिफॉल्ट कर दो, हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड MRP प्रोफाइल। ओके, MRP प्रोफाइल क्या है अभी? ठीक है, दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन है। MRP प्रोफाइल, आपको MRP प्रोफाइल, MRP एरिया, MRP कंट्रोलर, ऐसे 2-4 नाम के साथ हमेशा कंफ्यूजन होगा। सो लेट अस हैव द क्लैरिटी ऑन दैट पार्ट। व्हाट इज MRP प्रोफाइल? Okay, so let us go to it now. Suppose now, are you aware what is the concept of MRP controller? First of all, MRP controller. No. No. Okay. Now in SAP industry, MRP stands for Material Requirement Planning. ठीक है, अभी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग समझ में आ रहा है? वेरी बेसिक वर्ड है। मटेरियल है, MRP रन मतलब मटेरियल जो आपका है उसके ऊपर उसका प्लानिंग करना है, मतलब कौन सा मटेरियल कितने क्वांटिटी में कौन से तारीख पे कौन से प्लांट पे चाहिए। ओके, उसका इंफॉर्मेशन 5R विच ओके
राइट मटेरियल इन अ राइट क्वांटिटी एट अ राइट प्लेस इन अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस। ओके, तो ये सब आप अचीव कर सकते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से। तो अभी यहाँ पे एमआरपी कंट्रोल जो कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है, आपके कंपनी के अंदर एक स्टोर लोकेशन रहता है, राइट, जहाँ से मटेरियल आप इशू करते हैं या फिर वहाँ पे मटेरियल स्टोर किया जाता है। तो वहाँ का एक स्टोर का इंचार्ज होता है, या फिर आपके कंपनी के अंदर अगर बहुत ज्यादा मटेरियल्स है तो उसको प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए 10-15 लोग हैं अलग अलग, जो सिर्फ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं। तो वो लोगों को बोलते हैं एमआरपी कंट्रोलर। उनका काम क्या रहता है कि दिस पीपल और दैट स्टोर का पर्सन, जो भी एक बंदा है जो मटेरियल को कंट्रोल कर रहा है। मटेरियल का कंट्रोल का मतलब क्या, उसका प्रोक्योरमेंट, उसका कंजम्पशन, उसका स्टोरेज, उसका हैंडलिंग, उसका इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सब कुछ दिस फेलो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल। ओके, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल कंजम्पशन, उसका प्रॉपर हैंडलिंग, हैंडलिंग यानी स्टोरेज उसका प्रॉपरली, और उसका इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब चीजों के लिए एक बंदा होगा, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दैट इज अ एमआरपी कंट्रोलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes. हाँ, वेरी बेसिक। आप अब इमेजिन करो, आपके ऑफिस में कोई तो बंदा होगा इन योर Yes. प्रीवियस कंपनी, जहाँ पे आपने देखा होगा हाँ ये बंदा ये पर्टिकुलर मटेरियल को हैंडल कर रहा है। नाउ एज्यूम करो कि हमारे पास वी आर इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कंपनी, और हमारे यहाँ पे एक एंटिटी है, जो लोग, दो लोग हैं, एक बंदा है जो सिर्फ टायर देखता है, कौन सा भी गाड़ी हो उसका टायर का प्रोक्योरमेंट का काम है। तो वो सीएट्स से बात करेगा, ब्रिजस्टोन से बात करेगा, ठीक है, अपोलो से बात करेगा, हर एक डीलर के साथ, मतलब हर एक सप्लायर के साथ वही बात करता है। हर एक जितना भी गाड़ी बनाना है, सब गाड़ियों का टायर का रिक्वायरमेंट उसी के पास जाता है, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टायर। ओके, नाउ देर इज अनदर पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज डीलिंग विद द ग्लास। ठीक है, तो वो आपका मिरर का ग्लास हो, या फिर विंडशील्ड हो, या रियर विंडशील्ड हो, या फिर आपके विंडोज के विंडशील्ड हो, सब टाइप के विंडशील्ड है, उसका प्रोक्योरमेंट वो सेंट गोबिन अपनी कंपनी जहाँ से सप्लायर लेता है, तो उसके साथ वही बंदा डील करता है। जितना मटेरियल लाना है, कितना कम करना है, क्या करना है, पूरे प्लान के अंदर एक ही बंदा है, वो सब देख रहा है। ओके, ग्लास के लिए। तो ये दो एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी अभी मान लो फ्यूचर में क्या हुआ, हमने टायर के, तो हमारे पास मतलब 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है टायर के। ठीक है, मटेरियल मास्टर में 40 डिफरेंट डिफरेंट टायर्स मटेरियल है। अभी फ्यूचर में क्या हो रहा है, जैसे ही नए नए टायर, देखो जैसे गाड़ी नहीं बनेगी तो उसका टायर का नया ट्रेड, उसका डिजाइन स्पेसिफिकेशन वाले नए नए टायर लेने पड़ेंगे, तो उसका नया मटेरियल मास्टर मटेरियल क्रिएट किया जाएगा। बराबर है? एग्रीड? Mm. यस और नो? Yes. Yes. ओके, तो हमेशा अगर आपको वो मटेरियल मास्टर क्रिएट करना है और आप जानते हैं देयर आर सम ऑफ द थिंग्स आर कॉमन। अभी जो ग्लास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभी देखो हर एक गाड़ी की विंडशील्ड जो होती है वो अलग होती है। विंडशील्ड यानी फ्रंट ग्लास, ओके। देन आपके जो विंडोज होते हैं, RH LH, ओके, देन रियर RH रियर LH, ओके, जो पीछे के वगैरह, वो सब अलग शेप के रहते हैं हर गाड़ी के। तो क्या होता है, जैसे नया प्रोडक्ट आएगा, नई गाड़ी लॉन्च होगी, तो नया विंडशील्ड होगा, नया कांच बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो कांच है लाने वाला बंदा जो है, वो एक ही बंदा है, और वही मटेरियल मास्टर क्रिएट कर रहा है, एंड वही प्रोक्योर भी कर रहा है, वो भी सब मैनेज कर रहा है, और उसको मालूम है कहाँ से लाना है, कौन सा वेंडर है, सब उसको मालूम है। अभी एज्यूम करो कि मैं नया एक ग्लास मटेरियल क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्पलेट बना के रखूंगा। किस चीजों के लिए? मेरा MRP 123 प्रोफाइल जो है, इसके अंदर के जो वैल्यूज है, उसको मैं क्या करूंगा, एक टेम्पलेट के थ्रू कंट्रोल करूंगा। लाइक ट्रांजेक्शन कोड इज, देखो एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, ओके ओके, भी यहाँ पे लिखते हैं ईच, क्लास भी ईच में आएगा, ठीक है। भैया मटेरियल ग्रुप में जाके ढूंढना पड़ेगा क्लास करके कुछ है क्या, ठीक है, होगा तो ठीक, नहीं तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम इसके साथ चलेंगे। वाह, ग्लास बॉटल है, चलो ये पकड़ के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सिलेक्टर 2 में कुछ नहीं। अभी MRP 1 में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद मुझे हमेशा परचेसिंग ग्रुप डालना पड़ेगा 001, ओके। देन उसके बाद मुझे MRP टाइप डालना है PD। देखो ये वैल्यू मैं भर रहा हूँ गाइस, मैन्युअली भर रहा हूँ, ये मुझे भरना पड़ेगा हर मटेरियल के, राइट। तो ये MRP कंट्रोल का उसका नंबर है, नाम है उसका, ठीक है। लॉट साइज यहाँ पे EX लिखना है। तो दीज आर द सम ऑफ द वैल्यूज विच ही हैज टू अपडेट एवरी टाइम। MRP 2 में जाओ, यहाँ पे F लिखो, यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम मैंडेटरी है वो डालो, ठीक है। और सेफ्टी स्टॉक लिखो यहाँ पे कुछ, तो 100 क्वांटिटी हमेशा इतना क्वांटिटी होना ही चाहिए। फिर MRP 3 में जाओ, यहाँ पे जाके शेड्यूल मार्जिन की अपडेट MRP 2 में करो, फिर एंटर करो। MRP 3 में जाओ, यहाँ पे उसका स्ट्रेटेजी मेंटेन करो, ओके, समथिंग लाइक दैट। फिर MRP 4 में जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं, और ऐसा करके आपको मटेरियल का ये MRP 3 4 1 2 3 4 व्यू में जाके डेटा अपडेट करना है, ठीक है।
यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास डालना है, 1 मिनट, अकाउंटिंग 1 में जाके वैल्यूएशन क्लास डालो। अब ये वैल्यूएशन क्लास वगैरह इसके लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि दिस इज योर ओनली फॉर MRP 1 2 3 व्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 मिनट रुको, मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, एंटर, ठीक है। ओके, कॉस्टिंग 1, कॉस्टिंग 2 एंड सेव। मैंने अपना एक मटेरियल भी ग्लास करके क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अभी देखो हमने MRP 1 2 3 4 में कुछ वैल्यू भरी थी। नाउ लेट अस गो टू क्रिएट अ MRP प्रोफाइल, MMD1। अभी MMD1 ये MRP प्रोफाइल क्या है? We can create MRP profile in MMD1 transaction, which can be used while material creation when MRP 1 to 4 views values are default or fixed। अभी देखो MMD1 में मैं कर रहा हूँ बैच 14 करके, मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। इसका नाम देखते हैं बैच 14 MRP प्रोफाइल। ओके, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, आपका जो ग्लास मटेरियल अभी क्रिएट किया था, मोर मटेरियल डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। इसमें चले जाते हैं, एंटर। मटेरियल 5 6 डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट एक्टिव डिटेल्स। सेव तो हुआ है यार, मटेरियल क्यों क्रिएट नहीं हुआ, बट ठीक है चलो। अब इस क्रिएट करते हैं /NM01। ओके, ग्लास फॉर फ्रिज, ग्लास फॉर, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर ईच मटेरियल ग्रुप यहाँ पे ये लेते, एंटर। ओके, बेसिक डेटा 2, डायरेक्ट MRP पे जंप करेंगे। परचेसिंग का डेटा भरना पड़ेगा, MRP PD, MRP कंट्रोलर 0001। ओके, लॉट साइज EX, सॉरी माय बैड, EX, एंटर। यहाँ पे 1, एंटर, 000, एंटर। ओके, इसमें कुछ नहीं भरना, डायरेक्ट अकाउंटिंग 1 में जाना है। वैल्यूएशन क्लास 3000, साइज वेरिएबल 1000, एंटर, एंटर, वैल्यूएशन कैटेगरी, तो ग्लास फॉर फ्रिज मोर, तो ये हमने एक क्लास करके रॉ मटेरियल बना लिया। यहाँ तक क्लियर सबको? ये समझ में आया हमने कैसे बनाया? अभी देखो MRP 1 2 3 में वैल्यूज हमें भरनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट का मतलब क्या, एक बार वो चिपका दिया टेम्पलेट, तो आगे जो मटेरियल क्रिएट होगा वो अपने आप वही डेटा कॉपी करके क्रिएट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलो देखते हो। तो यहाँ पे दो चीजें, फिक्स वैल्यू एंड डिफॉल्ट वैल्यू। दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस, पीपल विल आस्क व्हाट इज MRP प्रोफाइल एंड व्हाट इज द फिक्स वैल्यू एंड व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू इन दैट। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, फिक्स वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे MRP टाइप, MRP टाइप उसका फिक्स है, मतलब आप वो वैल्यू, ठीक है। राइट प्रोटेक्टेड इन मेंटेनेंस, मतलब इसको हम ओवर राइट नहीं कर सकते। एक बार वैल्यू हो गया तो फिक्स हो गया। ओनली डिफॉल्ट वैल्यू, ओके, ये वैल्यू डिफॉल्ट रहेगी, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी चेंज, फिक्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। ओके, MRP टाइप आ गया। फिर यहाँ पे हम MRP कंट्रोल को ये वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, देन प्लान डिलीवरी टाइम यहाँ पर भी डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और हम सेफ्टी स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। लॉट साइज हम यहाँ पे EX ले लेते हैं, ठीक, बस इतना वैल्यू लेते हैं, ठीक है। देन डेटा स्क्रीन 1, ठीक है। अभी MRP टाइप हमेशा मुझे चाहिए PD, देखो यहाँ पे हमने PD लिया, वो ले रहे। MRP कंट्रोलर 0001, वही बंदा जो हमेशा क्रिएट करना है। प्लान डिलीवरी टाइम, अपने यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम कितना लिया है, 1 डे का, तो वो वहाँ पे 1 डे लेते। और सेफ्टी स्टॉक हमने भरा नहीं आता, या फिर 100 क्वांटिटी का सेफ्टी स्टॉक ले लेते, ठीक है। और लॉट साइज हमने क्या लिखी थी यहाँ पे, लॉट साइज और EX, ठीक है। तो ये EX ले लेते। तो मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट बनाया, ठीक है। B14 करके मैंने एक MRP प्रोफाइल बनाई, जिसके अंदर टेम्पलेट है, जिसके अंदर ये 5 वैल्यू मैंने फिक्स करके रखे। अभी अगर मैं नया मटेरियल क्रिएट करने जाता हूँ, ठीक है,
देखो /n/mm01, ठीक है। ओके, अभी ग्लास की जगह पे और क्या लगता है फ्रिज में आपका? डोर हैंडल लिखते हैं, चलो ठीक है। डोर हैंडल, मान लो कि ये बंदा है, यही आपका हैंडल। ओके, ये रॉ मटेरियल आने वाला है, तो यहाँ पर हम करेंगे एंटर। फिर यहाँ पे देखो प्लांट आ गया, यहाँ पे एमआरपी प्रोफाइल ऑप्शन आ गया। कैन यू सी दैट एवरीवन? वेज Yes. समझते तुला, स्वप्नील, Yes. राजेंद्र? Yes, sir. हाँ, Yes. what we are doing very basics, okay, you might have done this kind of stuff, okay। अभी एमआरपी प्रोफाइल में जाके मैं सिर्फ B14 टाइप करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो टेम्पलेट था वहां से डेटा सब फेच करेगा अभी सिस्टम, ठीक है। B14 से अभी यहाँ पे से मुझे नाम देना है, तो मैं लिखूंगा डोर हैंडल फॉर फ्रिज, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर इज ईच, मेटल ग्रुप यहाँ पे वही कॉपी करते हैं, ठीक है। एंटर, और यहाँ पे डायरेक्ट जंप करेंगे हम MRP1 व्यू में। जैसे हम MRP1 व्यू में जाएंगे, यहाँ पे परचेसिंग ग्रुप हमने लिया नहीं था, वो यहाँ पे सिर्फ वो अपडेट करना है। लेकिन नीचे का वैल्यू देख रहे हो, MRP टाइप PD, PD. इट्स बिकम नाउ नॉन एडिटेबल। व्हाई? चलो यहाँ पे मोर Fixed. प्रोफाइल Fix किया था। डिस्प्ले, ठीक है। हमने यहाँ पे इस वैल्यू को क्या किया था, MRP टाइप इज फिक्स, मतलब राइट प्रोटेक्टेड। राइट प्रोटेक्टेड यानी उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मैं चेंज नहीं कर सकता इस वैल्यू को। ओके, समझ गए? क्लियर है? ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों को, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या है आपका, MRP कंट्रोल डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट 001 है, बट आई कैन चेंज इट। यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली डिफॉल्ट वैल्यू इन मेंटेनेंस। ओके, डिफॉल्ट है, सो यू कैन इसको ओवरराइड कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। मुझे बाद में लगा कि इसको 01 की जगह 02 करना है, मैं कर सकता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? इससे क्या होगा, जो आपका सुपर यूजर या एंड यूजर जो भी मटेरियल मास्टर क्रिएट करने वाला बंदा है, इफ ही और शी यूज दिस टेम्पलेट, उसका काम आसान हो जाएगा। बार बार उसको ये वैल्यू डालनी नहीं पड़ेगी, वो एक टेम्पलेट बनाएगा, हमेशा वही टेम्पलेट चिपकाएगा, उसमें जाके कुछ कुछ चीजें चेंज करना है वो चेंज करवा के लेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes. Everybody clear? If you need out, please let me know, guys. Please stop me and tell me much it's not clear, I will repeat. Okay, लॉट साइज यहाँ पे EX रखना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉट साइज को, लॉट साइज कहाँ गया, हाँ, लॉट साइज को हमने डिफॉल्ट वैल्यू रखा है। इसको ES को आप चेंज भी कर सकते हो, जो चाहिए वो। फिर MRP2 में जाओगे तो यहाँ पे प्लान डिलीवरी टाइम अपने आप अपडेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक तो हमने बाय डिफॉल्ट रखा है भाई, इसको हाथ नहीं लगाने का। व्हाट वी डिड, फिक्स वैल्यू किया है सेफ्टी स्टॉक का, तो हमेशा कुछ भी हो जाए मुझे सेफ्टी स्टॉक 100 चाहिए चाहिए। क्लियर? काम आसान हो गया। Yes. ओके, सो व्हाई वी शुड नो ऑल दिस बेसिक्स। अगर कल कस्टमर आता है आपके पास, एंड यूजर, वो बोलता है बॉस आई हैव टू क्रिएट 10-15 मटेरियल्स एंड अगेन सेम वैल्यू आई हैव टू पुट, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, सो यू कैन गिव दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स। उसको बोलना है बॉस यू कैन यूज इन दिस वे। ओके, क्लियर? Yes, sir. Clear. कौन सा पैरामीटर? Umesh, I have one question about this. गो अहेड। Why we have need to do fixed values in that category? Because Okay. if we set default values and we can change it at any moment, then it is very useful to us. ना if राइट, एग्रीड एग्रीड। ओके, अभी देखो फिक्स वैल्यू मैंने क्यों बोला यहाँ पे। अभी क्या होता है, नाउ हियर इट इज PD, ठीक है। यहाँ पे PD रखा है, इसको इमेजिन कि 00। नाउ हियर MRP टाइप वैल्यू इज PD, इसको मैंने फिक्स किया। नाउ व्हाट हैपन इन सम ऑफ द बिजनेस, दे आर टेकिंग MRP रन फॉर ऑल रॉ मटेरियल, ठीक है। एज्यूम करो जो भी मटेरियल है उनका, इट विल नॉट कम वाया एनी मैनुअल कैलकुलेशन, इट हैज टू रन थ्रू MRP, ठीक है। नाउ इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग MRP इज अ सिस्टमेटिक प्लानिंग फॉर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड एंड सेमी फिनिश गुड, जिसमें क्या होता है, सिस्टम कैलकुलेट करती है कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना इनवर्डिंग में है, कितना स्टॉक में है, उसका सबका कैलकुलेशन करके सिस्टम डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैन्युअली आप कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसी जगह पे आपको हमेशा PD करना है। अगर PD नहीं किया तो उसके ऊपर MRP रन नहीं होगा और बाद में जाके प्रॉब्लम होगा। तो आपको मालूम है PD इज इंपॉर्टेंट, इट्स मस्ट। मेरे कंपनी में MRP के सिवा प्लानिंग होता ही नहीं है, सो बेटर आई विल मेक इट PD। और कोई भी जाके अगर किसी ने जानबूझ के जाके इसको चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी जगह पे इसको फिक्स करते हैं। नाउ इट इज कॉल्ड ऑफ बिजनेस ओनर और बिजनेस सुपर यूजर। इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम द बिजनेस एंड यू बिलीव दैट नहीं, आई डोंट बिलीव, मुझे फिक्स वैल्यू करने की जरूरत नहीं, हाँ लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए मुझे, आई वुड लाइक टू हैव क्रिएट टेम्पलेट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप टेम्पलेट ऐसा क्रिएट करो जिसमें हर एक वैल्यू को आपको डिफॉल्ट वैल्यू में सेट करना है। देखो आप जब भी क्रिएट करने जाओगे, सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक /n/mm_d1, ओके। और यहाँ पे हम क्रिएट करते DFT करके डिफॉल्ट वैल्यू का डिफॉल्ट,
अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं यार मुझे हर एक वैल्यू डिफॉल्ट चाहिए, ओके, नो वरीज, ओके। तो ऐसा करके हमने डेटा स्पीड MRP टाइप PD, MRP कंट्रोलर 0001, सेफ्टी स्टॉक यहाँ पे 100 रखना है, शेड्यूल मार्जिन की यहाँ पे रखना है मुझे 000 और यहाँ पे लॉट साइज EX रखना है, ओके। ये हमारा बिजनेस का रिक्वायरमेंट, ये यूजर का रिक्वायरमेंट। मान लो आपने जैसे बोला वैसे एंड यूजर ने आके बोला नहीं यार आई वुड लाइक टू हैव एवरीथिंग एज ए डिफॉल्ट, तो आपने ये DFT क्रिएट किया, तो क्या होगा देखो /n mm01 नया मटेरियल क्रिएट करेंगे हम, और डोर हमारे फ्रिज के लिए और क्या मटेरियल लगने वाला है, रेगुलेटर और ओके, रेगुलेटर हो गया यार ये तो, ठीक है चलो रेगुलेटर, ठीक है। अभी हम रेगुलेटर कर रहे हैं फ्रिज का क्रिएट, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे हम लेंगे DFT, ठीक है। अभी DFT लिया मैंने, रेगुलेटर फॉर फ्रिज, ओके, यूनिट ऑफ मेजर ईच, मटेरियल ग्रुप कुछ भी ले लेते, ठीक है। हम डायरेक्ट MRP 1 में जाएंगे, सो हियर परचेसिंग ग्रुप 000, बाकी वैल्यू देखो एडिटेबल आ गया, ओके। Okay. राजेंद्र आर यू क्लियर? Yes. सो इट इज योर कॉल, इट इज योर मीन्स योर सुपर यूजर, आपका बिजनेस का कॉल है कि उनको किस टाइप का टेम्पलेट बनाना है, द वे दे वांट दे कैन क्रिएट इट। आपके पास दोनों ऑप्शन है, कुछ बिजनेस बोलते नहीं यार मुझे फिक्स कर दो वैल्यू, ये क्यों करते हैं लोग फ्रस्ट्रेशन में, वो देखते हैं बार बार somebody is प्लेइंग विद दैट मेटल मास्टर, ऐसा होता नहीं कंपनी में, लेकिन अगर 2 या 3 लोगों को ऑथराइजेशन है मेटल मास्टर का, तो कोई बंदा गलती से मतलब अननोइंगली मिस्टेक कर देता है एंड देन पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, सो यू नो अवॉइड दैट फ्रस्ट्रेशन। वो बोलते हैं यार उसको वैल्यू को लॉक करके रखो, आई डोंट वांट टू चेंज इट, फिर वो बाद में उसको आपको प्रोफाइल हटाना पड़ेगा एंड देन लॉट ऑफ स्टेप्स यू हैव टू डू, ओके। सो बेटर व्हाट एवर यू आर सेइंग दिस इज प्रैक्टिकल कि यार एक काम करो टेम्पलेट दो जिसमें से वैल्यू विल बी गेट अपडेटेड ऑटोमेटिकली, बट आई हैव राइट्स टू चेंज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो यस दैट इज ऑल्सो feasible, okay, clear with this concept Yes. everyone? Yes. Okay, Yes. so guys we will stop over here for today, okay, and let me stop recording.